On the question, determine circular convolution of a sequence. Two sequences given to you, that is x of n and h of n. Using graphical method of circular convolution. Now first you have to check whether the range or the samples of two sequence are equal or not. अब check करो दोनों sequence में length equal है कि नहीं. Yes ma'am, equal. Same. That कितनी range है? That is 4. Yes. Yes ma'am. That means the value of capital N is 4. Now, according to the formula of circular convolution, this is the formula of circular convolution. The range is minus infinity to infinity. आपने पढ़ा होगा first lecture में. But the range of M and N is 0 to N minus 1. And capital N is 4. 4 minus 1 is 3. That means the range of N and M is 0 to 3. Done? कर लिया नोट डाउन आप कॉपी पे कि अभी भी स्क्रीनशॉट ही ले रहे हो? कर लिया मैम. Okay. Now we have to find out the value of output y of m from 0 to 3. That means you have to find out y of 0 to y of 3. Now any question, Rajan? Clear है यहाँ तक? Yes ma'am. Okay. अब कैसे करना है? फर्स्ट लेक्चर में हम सर्कुलर प्लॉटिंग कर रहे थे. फर्स्ट है x of n सीक्वेंस. सर्कुलर प्लॉटिंग करनी है इसकी. हाउ टू प्लॉट x of n सर्कुलरली. फर्स्ट कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स बना लिए. एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज? टेल मी. Yes, any one of you. We have to plot this sequence x of n and h of n circularly. It's clockwise or anti-clockwise? Ma'am, anti-clockwise. Anti-clockwise. And the starting position is this. What is the starting first sequence? That is 0, then 1, then 2, then 3. ये आपने x of n सीक्वेंस ड्रॉ कर लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. और स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी है? सिमिलरली ड्रॉ h of n. h of n भी ड्रॉ करो. h of n में भी 4 पॉइंट्स हैं. अगेन एंटी क्लॉकवाइज होगा और स्टार्टिंग पोजीशन यही रहेगी. दैट इज 2 1 1 2. डन. Now any question up to this point? जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं लगाया था, किसी को समझ नहीं आया? Tell me. I am waiting for your No, response. Yes, clear है? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. अब in equation number 2, put m is equal to 0. m is equal to 0 पुट करो. इन इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगा? y of 0 is equal to summation n tends to 0 to 3 x of n h of 0 minus n 4. m को 0 करना है. 0 minus n h of minus n रह जाएगा. Now h of n is given. We have already drawn it. अब h of minus n क्या है? That is the folding of h of n. h of n is the original sequence. अब folding करनी है. Folding क्या होगी? That is clockwise direction. Starting position remains same. बाकी सारे clockwise हो जाएंगे. 2 1 1 2. Any doubt? Yes. You can respond. No ma'am. क्लियर है? अब क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे रीड करो. x of n is multiplied with h of minus n. अब x of n आपने ड्रॉ किया हुआ है, h of minus n भी हमने ड्रॉ कर लिया. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है.
Now it's a sequence by sequence multiplication. How? दो सर्कल बनाए, एक है, मान लो ये h of n है, और इसके बाहर एक सर्कल बना लिया फॉर x of n एंड वाइस वर्सा। चाहे आप यहाँ पे x of n लिख लो, अंदर मैं लिख रही हूँ x of n की 0 1 2 3 वैल्यू, ये x of n की वैल्यू लिखी, बाहर h of minus n that is 2 1 1 2 2 1 1 and 2। अब मल्टीप्लाई कर रहा है एंड मल्टीप्लाई इज सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मल्टीप्लिकेशन। अब ये सीक्वेंस बाय सीक्वेंस 0 मल्टीप्लाई विद 2 1 मल्टीप्लाई विद 2 अगेन 1 into 2 and 3 into 1। अब ये लिखो सारी वैल्यूज क्या बनेगी। फर्स्ट इज 2 into 0 0 प्लस 3 into 1 3 प्लस 1 into 2 2 and last is 1 into 2 2। Result is 7. That means the value of y of 0 is 7. Any question? Kunal, Amandeep, Krishna, Rajan. No, No, ma'am. ma'am. No. Now next you have to put m is equal to 1. अब इक्वेशन नंबर 2 में m को 1 पुट कर दो। अब यहाँ देखो, अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लूं क्या बन जाएगा, माइनस n माइनस 1। लास्ट स्टेप में वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन h ऑफ माइनस n। अब उसमें क्या करना है, डिले बाय 1 सीक्वेंस। अब आपका h ऑफ माइनस n क्या था मुझे बताओ पहले। दैट इज 2 1 1 2। आई एम राइट? Yes, ma'am. ओके, क्लॉकवाइज में। अब हमने यहाँ पे डिले करनी है, हाउ मेनी स्टेप्स, 1 स्टेप। डिले क्या होएगा, एक सीक्वेंस पीछे हो जाएगा। स्टार्टिंग रेशियो यही थी, डिले जब करोगे ये सीक्वेंस कहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे, ये वाला भी एक पीछे, ये भी एक पीछे, और ये भी। अगर एडवांस करना होता तो ये वाला आगे चला जाता। अब h ऑफ माइनस ऑफ n माइनस 1 ड्रॉ कर रहा है, कैसे बनेगा, सर्कल ड्रॉ करो, 4 पॉइंट्स। अब जो सीक्वेंस हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा था ये वाला, वो एक डिले हो जाएगा। दैट इज 2 1 1 2। दैट इज योर h ऑफ माइनस n minus 1। Now any doubt in this? No, ma'am. No? अब इस सीक्वेंस को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई विद x ऑफ n। x ऑफ n भी आपने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, मैं फिर से बना रही हूँ। दैट इज 0 1 2 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दो सर्कल बनाओ, एक सर्कल में x ऑफ n की वैल्यू, एक में h ऑफ माइनस ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू, एंड मल्टीप्लाई इट। हाउ, सी हियर, that is y of 0, ये y of 1, and tell me कितनी वैल्यू आई। अरुण आपने कैलकुलेट कर ली, have you calculated? Yes friends, done? Yes, ma'am. कितनी वैल्यू आ रही है, 9, ma'am. 9 आ गई वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लाइंग, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मल्टीप्लिकेशन। Now next is, now put m is equal to 2 in equation number 2। अब equation number 2 में m को 2 पुट करो, क्या बन जाएगा, it's y of 2 x of n h of 2 minus n। अब ये क्या है, that is h minus common निकालो n minus 2। Now anyone can tell me the description of this?
हम 2 यूनिट से डिले होगा। हाँ जी, 2 यूनिट से डिले होगा। 2 यूनिट्स डिले। बताओ 2 यूनिट्स डिले किसको करोगे? एच ऑफ माइनस एन को। ये एच ऑफ माइनस एन ड्रॉ किया है, 2 यूनिट्स डिले करोगे तो ये वाला कहाँ जाएगा? एच ऑफ 2 पर। एच ऑफ मींस ये वाला यहाँ चला जाएगा, बाकी सारे भी रिवर्स हो जाएंगे बाय 2 स्टेप्स। इज दैट क्लियर? ड्रॉ इट। कैसे बनेगा? ये बन गया 2 यहाँ पे, ओके, ये बन गया 1, ये भी 1 एंड दिस इज 2। डन? ग्रेट। मैंने एंटी क्लॉकवाइज बनाए कि सही है? ये वाला इधर गया, सही है। इट्स 1 1 and 2, okay? Yes, I'm right or wrong? You can Yes, verify ma'am. it. सही है? यस मैम। सीक्वेंस ये वाला क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज होगा। अगर ये वाला यहाँ पे गया 2, यहाँ पे आ गया 2, ये वाला 1 यहाँ पे, ठीक है, ये भी 1 एंड दिस 1 2 यहाँ, ओके, 1 1 2। नाउ मल्टीप्लाई दिस विद x ऑफ n। ये x ऑफ n आपको गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड टेल मी व्हाट इज द रिजल्ट। 11 मैम। कितना आ रहा? 11। वेट, it's 11, yes. Now next last put m is equal to 3 in equation number 2। equation number 2 में m को 3 करो, क्या बन जाएगा? इट्स y of 3 is equal to x of n h of 3 minus n। that means h of minus n minus 3। now delay the folded sequence by 3 steps। जो आपने h of minus n ड्रॉ किया है उसे 3 steps डिले कर दो, then multiply with x of n। that is your h of 3 minus n। जो मेरा सीक्वेंस यहां से स्टार्ट हो रहा था, this one is your h of minus n is 2 1 1 2 क्लॉकवाइज में। अब हमने क्या करना है? 3 स्टेप्स डिले करना है। 3 स्टेप डिले मींस 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। दैट मींस ये 2 यहाँ आया, h of 0, h of 0 then h of 1 h of 2 h of 3 रहा क्लॉकवाइज ही। x of n ऑलरेडी गिवन है, मल्टीप्लाई करो एंड टेल मी रिजल्ट, कितनी वैल्यू आ रही है? मैम 9। 9। that is a circular convolution using graphical method। now any query in this method, then you can unmute yourself। yes, please all respond। नो डाउट मैम। no question? rest all students? No, ma'am. Rajan, Arun and Krishna, क्लियर है मैम। Kunal। now second method is matrix method। matrix method में क्या है? again first you have to check the length of the two sequence, is it same or not। दोनों सीक्वेंस की लेंथ को चेक करो। अब इसमें भी कितने सैंपल्स हैं और इसमें कितने हैं? टेल मी हाउ मेनी सैंपल्स आर देयर इन x of n and h of n। 4 सैंपल में। हाँ जी, मैम 4। 4। तो कैपिटल N की वैल्यू कितनी हो गई? 4।
दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ सर्कुलर कन्वोल्यूशन. अगर हम x of n को ऑब्जर्व करें, what is 0? That is the value of x of 0. 1 is value of x of 1, x of 2, x of 3. Similarly, h of 0 is 2, h of 1 is 1, h of 2 is 1 and h of 3 is 2. ये सारी वैल्यूज हमने नोट डाउन कर लेनी है. अब मैट्रिक्स मेथड में क्या करना है, आउटपुट जो आपकी y of n होगा, y of m मैट्रिक्स में कितनी निकालनी है फर्स्ट ऑब्जर्व करो. व्हाट इज द लेंथ ऑफ m and n? check it. First check what is the length of m and n. कैपिटल n is 4. now tell me इन दोनों की रेंज कितनी होगी? 0 to 3 मैम. 0 to 3. Why? Because the range of m and n is 0 to n minus 1. Capital N is 4. That's why the range of m and n is 0 to 3. तो हमने आउटपुट कौन सी निकालनी है? y of n. That means we have to find out y of 0 to y of 3. अब अगर मुझे सिर्फ आउटपुट y को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे? y of 0, y of 1, y of 2, y of 3, ऐसे लिख लेंगे चारों. ये रहा y of 0, y of 1, y of 2, y of 3. अब आपने कैसे इसमें देखना है? देखो फर्स्ट है ये मैंने x of n लिखा हुआ है. हाउ टू अचीव इट will tell you later. That is your h of n. You can interchange their rules also. आप यहाँ पे h of n भी लिख सकते हो, यहाँ x of n भी लिख सकते हो. ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहाँ x of n नहीं आएगा और यहाँ पे h of n आएगा. Is that clear? Yes मैम. कैसे करना है? See here. फर्स्ट मैट्रिक फॉर्म में आउटपुट लिखो. दैट इज y of 0, y of 1, y of 2. जितनी आपने आउटपुट निकालनी है उतनी लिख लो. अब 4 पॉइंट्स है, मैंने y of 0 से y of 3 लिख लिया. अब यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे x of n की. अगर ये 4 सैंपल्स हैं, इसमें 4 पॉइंट्स है, तो ये 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स बनेगा. अगर 2 होती तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स 4 वैल्यूज होनी थी. अब ये 4 क्रॉस 4 वैल्यू मैट्रिक्स है तो 16 वैल्यूज आएंगी. और यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख ली h of n की. h of n की वैल्यू कितनी है? टेल मी. क्वेश्चन में h of n की वैल्यू कितनी है? 2, 1, 1, 2. नोट डाउन करो. 2, 1, 1, 2. And what about the value of x of n? That is 0, 1, 2, 3. First आपने as it is first column में x of n की वैल्यू लिख ली 0, 1, 2, 3. अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है? थ्री जो आपका है उसे नेक्स्ट सेकंड कॉलम में फिर से रिपीट करना. ये बन गया 3. जब आपने लास्ट वाली वैल्यू नेक्स्ट कॉलम में रिपीट कर दी, बाकी ऑल अदर वैल्यू रिमेन सेम. दैट इज 0, 1, 2. एनी क्वेश्चन? आई एम अगेन रिपीटिंग. फर्स्ट जो सैंपल आपको सीक्वेंस गिवन है उसे एज इट इज लिख दो. फिर जो लास्ट सैंपल वैल्यू उसे सेकेंड कॉलम में फिर से रिपीट करना है. रेस्ट ऑल वैल्यूज को एज इट इज लिख देना. सिमिलरली अब ये वाली वैल्यू को फिर से रिपीट करो. दैट इज 2. बाकी सारी एज इट इज लिख दी. 3, 0, 1. ये 3, ये 0, ये 1. अब कौन सी वैल्यू रिपीट करोगे? 1. 1, देन 2, 3, 0. कब तक ये चीज करनी है? एडजसेंट वैल्यू जब तक सेम नहीं आ जाती. जो स्टार्ट किया था वो ही लास्ट पे आना चाहिए. तब तक आपने ये वैल्यू ऐसे ही ये प्रोसीजर रिपीट कर देना. क्लियर है? नाउ एनी क्वेश्चन? नो मैम. अब मैट्रिक्स को आपको पता ही है कैसे मल्टीप्लाई करना. हाउ टू सॉल्व इट? फर्स्ट रो
multiply with this column, then second row and column, third row and column, and fourth row and column. Do it fast and tell me what is the result. Is it's 3, ये 4. 7. कितनी वैल्यू आ रही है फर्स्ट? 7. ओके. 7 मैम. सेकंड नाइन. ये वैल्यू 1 है. इस वैल्यू को देख लो कितनी है. 3 towards 1. इस रो को, फर्स्ट रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करना. 2 into 0, 3 into 1, 2 into 1, 1 into 2. सेकेंड वैल्यू कितनी आई? 9 मैम. Yes. Third as 2 into 2, 4. 1 into 1, 1. 4 plus 1, 5. ये 0 हो जाएगी थर्ड वाली. And 6. 5 plus 6, 11. यस मैम. हाँ जी. Last 3 into 2, 6. 2 into 1, 2. 8. And 1 into 1 is 1, 9. Now verify it with graphical method result. देखो दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. सेम है मैम. Same. So result will be same in all the methods. आप चाहे graphical method use करो, चाहे matrix और third TFT and IDFT, result same रहेगा. Now any question in this? नो मैम. ये पता लग गया कैसे करना है इसमें? Here. Any doubt how to achieve this value? Yes, students. No, ma'am. Most important topic. अब थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर सर्कुलर कन्वोल्यूशन में आज पढ़ा था. Why the result of circular and linear convolution is not same? अब मुझे first just give me the overview of linear convolution. Any one of you. What is linear convolution? Circular के बारे में मैं बता दूंगी. Tell me. Yes, friends. Any one of you say yes or no? I'm audible. Yes, friends, I'm audible or not? Yes, Sonia, ma'am. audible हो? हाँ जी मैम. Okay. Now suppose ये हमारे पास 2 sequence है. Tell me first sequence की range कितनी है? How many samples? मैम 3. हाँ जी. 3. 3. Range is 0 to 2. 2. 0, 1, 2. And h of n में कितने हैं? 4 सैंपल है हाँ और जी. रेंज 0 to 3. 0 to 3.
तो फर्स्ट अगर हम लीनियर कन्वोल्यूशन की बात करें, इन लीनियर कन्वोल्यूशन देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि दोनों सीक्वेंस की रेंज सेम हो, बट हम y ऑफ n की रेंज कैसे निकालते हैं कि आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आनी चाहिए। फर्स्ट लोअर रेंज दोनों की ऐड करते हैं 0 + 0 0, then higher range 2 + 3 5. That means we have to find out the output from y of 0 to y of 5. Do you remember this? Yes, ma'am. Second formula is most important, please note down. Capital N is equal to L plus M minus 1. Capital N is equal to L plus M minus 1. अब कैसे है इसमें? Capital L is the number of samples contained by x of n. कितने samples हैं x of n में? Yes. How many? Ma'am, n क्या है? x of n में कितने samples हैं? 3. 3. Capital M is number of samples present in second sequence h of n. How many samples? 4. 4. Minus 1. 3 plus 4 is 7. 7 minus 1 is 6. Capital N is 6. That means 0 to 5. It's verified or not? Yes, ma'am. अगर आपने डायरेक्ट लीनियर कन्वोल्यूशन की रेंज निकालनी है, देन दिस इज द फॉर्मूला. अब सर्कुलर कन्वोल्यूशन की बात करें, अब एक और x ऑफ n में 3 सीक्वेंस थे, यहाँ पे 4, बट आउटपुट में आ गए 6, 0 to 5. But in circular convolution, the number of samples in output is equal to the number of samples present in x of n and h of n. जितने सैंपल दोनों इनपुट सीक्वेंस में प्रेजेंट होंगे उतने ही आउटपुट में भी प्रेजेंट होंगे. इज इट ट्रू और नॉट? हमने अभी ग्राफिकल और मैट्रिक्स मेथड पढ़ा, 4 सैंपल लिए थे, आउटपुट में भी 4 आए कि नहीं? Yes, ma'am. That's why the result of linear and circular convolution is not same. अगर क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट आपने डिफरेंस बताना है कि सर्कुलर कन्वोल्यूशन क्या है, लीनियर कन्वोल्यूशन क्या है. सर्कुलर कन्वोल्यूशन इज पीरियोडिक कन्वोल्यूशन, दिस इज कन्वोल्यूशन सम. और लीनियर कन्वोल्यूशन में हम कैसे चेक कर सकते हैं? लाइक दिस, यूजिंग दिस फॉर्मूला. और सर्कुलर कन्वोल्यूशन में क्या है? जितने नंबर ऑफ सैंपल्स इनपुट सीक्वेंस में प्रेजेंट होंगे उतने ही आउटपुट में आएंगे. डन? एनी डाउट्स फ्रेंड्स? 2 or 5 marks question. Why the result of circular and linear convolution is not same? Now any query? No, ma'am. Yes, Krishna, Rajan. No, ma'am. Yes, Rajan. क्लियर है मैम. Amandeep, Arun and Kunal. क्लियर है मैम. Here, in linear convolution equation is this. इस equation के through हमने and second जो हमने linear convolution में पढ़ा था उसके according भी आप find out कर सकते हैं. Now, next is third method using DFT and IDFT method. Third method of circular convolution. We have already discussed about DFT as linear transformation matrix, and these are the formula of DFT in matrix form, and this is IDFT in matrix form. Do you remember this? पढ़ा है ये हमने? Yes, ma'am. तो इसमें आपने क्या करना है? फर्स्ट नोट डाउन द स्टेप्स. आपको 2 सीक्वेंस गिवन होंगे x of n
and h of m. First, you have to find out the DFT of first sequence x of m in metric form. सबसे पहले आपने फर्स्ट सीक्वेंस की DFT फाइंड आउट कर लेनी है यूजिंग दिस फॉर्मूला. Then second step is find out the DFT of second sequence h of n. थर्ड स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है टू obtain y of n. Why? Because we already know कि दो सिग्नल्स की कन्वोल्यूशन, दो सीक्वेंस की कन्वोल्यूशन उनकी DFT के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी. जब आपने आउटपुट y of n निकाल लेनी है, देन DFT कैसे निकालोगे? IDFT of y of n is using this formula. If any doubt is there, then tell me. Please note down these steps. इनके क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. Yes. No doubt, ma'am.